ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے نجات پانے والا وہ انسان ہوگا جس نے تم لوگوں میں سے مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھی ہے۔ ہائے ہلو دوستوں، میں صدام حسین انڈیا سے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیات ریئل۔ دوستوں، آج ہمارا وشے بقرعید یعنی قربانی ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ بقرعید یعنی قربانی کی کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنی بڑی شہادت ہے۔ دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی دیا جائے گا، جسے آج ہم لوگ مولانا حبیب اتاری صاحب کے بیان کے ذریعے یہ جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں کیا بتایا ہے، کیا کیا بتایا، اس کے طریقے کیا بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اور دوستوں، میں یہ بتاتا چلوں کہ مولانا حبیب اتاری صاحب ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا، جنت کا۔ اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے۔ ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ We can't able to count our hair، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے ہر بال کے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی اٹ مینس اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے
तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिश जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर टू कंडीशंस, खुश दिली के साथ, ओपन हार्टेडली, बोझ समझ कर नहीं, बर्डन समझ कर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूं और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूं। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह, खून का एक कतरा गिरने से, सुभान अल्लाह, जानवर का कतरा गिरना है खून का, और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारा अली सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहाँ फर्ज नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले, बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लें, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है, और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी, सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में इन जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं, पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोट के विलेजर्स, वो गांव गोट के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं। और जनाब, अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब, पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे? गरीबों के पास गए। अच्छा, लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए तो उस मंडी में हजारों लाखों, यूं समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई उनका ख्याल कर रहा होता है, उनका रोजगार शुरू हो जाता है।
پھر लग जब वो जाता है। खरीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। अच्छा, मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीजें होती है वो भी बेच रहे होते हैं। हजारों लोग आते हैं तो वहां पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने इस पीने सब की में चीजें तो बिकना गरीबों का शुरू हो भला जाती है। हो ही कितने रहा है। गरीबों का भला होता है। अच्छा, जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारी घरों के करीब आ जाता है, तो अब घर के इलाके में, बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं उनका रोजगार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा जरा और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी? है हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को, हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5, 6-6 हेल्पर होते हैं, उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं? वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा, अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ? सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं, तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है, जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहां शूज, तो जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई, कढ़ाई, मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, अमल करना, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चलें, फजीलत पर भी बात हो गई, कुछ लॉजिक्स पर भी बात हो गई, और अब आइए, सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं तो ये इतने सारे बेनिफिट्स तो होने ही होने, कुछ और शानदार बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हमारे आशिकाने रसूल लेते हैं, कई मुल्कों में कुर्बानी करना आसान नहीं होता, फिर उसको संभालना आसान नहीं होता, उसकी सफाई और उसके बाद उसका गोश्त बांटना, तो अब कहाँ कुर्बानी करवाएं? तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने आपके लिए काम बड़ा आसान कर दिया कि हमने इज्तिमाई कुर्बानी, डोनेट कुर्बानी का एक मॉड्यूल मुतारिफ करवाया कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप घर बैठे, आपकी कुर्बानी हम करेंगे। और कैसे करेंगे? क्योंकि ये शरई काम है, शरई फरीजा है, वाजिब है, तो इसके जो भी शरई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी जो शरई एहतियातें हैं, मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई लेकर, उनसे तरबियत लेकर एक शानदार निज़ाम बनाया कि आपका हिस्सा जो है, आपके नाम की कुर्बानी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर तरीके से और शरीयत की गाइडेंस में हो। और फिर वो कुर्बानी होने के बाद आपकी तो कुर्बानी हो गई, मगर अब दीगर फायदे क्या होंगे कि जो उसका गोश्त है वो आशिकान रसूल के घरों तक पहुंचेगा। और आप यकीन करें, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोगों के घरों तक गोश्त पहुंचता है जो शायद पूरा साल बकरा ईद का इंतजार करते हैं कि हमारे घर भी गोश्त आ जाएगा। आप किसी बैरून मुल्क में बैठे हैं, हम तो रोज शायद खाना अच्छा खा लेते हैं, मगर आपकी उस कुर्बानी की बरकत से किसी का 15 दिन या किसी का महीना जो है घर में गोश्त पकता रहेगा, और उसके दिल से आपके लिए दुआएं होंगी। और उसके बाद उसकी जो कुर्बानी की खाल है, वो आपकी मेरी दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, उलमा बना रही है, हुफ़ाज़ बना रही है, मस्जिदें बना रही है, और ना जाने दीन की कितनी सारी चीजों पर काम हो रहा है, इंशाअल्लाह हमारा उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, इंशाअल्लाह नेकियों का खजाना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बार आपने अपनी कुर्बानी करनी है दावत इस्लामी के साथ। और हाँ, सिर्फ अपनी कुर्बानी क्यों, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिना की वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहां मैं अपने लिए कुर्बानी करूं, वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूं। और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम अज कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए, एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखें ना कि आप
उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था, हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो कुर्बानी करने वाले, कुर्बानी के जानवर की हर एक एक बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगा। दोस्तों सोच कर देखिए कि कुर्बानी के जानवर, बकरा हो, भेड़ हो, गाय हो या फिर ऊंट या कोई भी जानवर, उस जानवर में कितने बाल होते हैं। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि हर एक बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगी। सो दोस्तों सोच के देखिए कि कितने सारे नेकी होंगे, कितने मिलियंस में नेकी मिलेगी। सोच कर देखिए कि कुर्बानी करने से कितने मिलियंस में नेकी मिल सकता है। हालांकि उसका गोश्त भी हम लोग आपस में ही तकसीम करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ न कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है, न खाल पहुंचता है और न ही उसका खून पहुंचता है। अगर कुछ पहुंचता है तो इंसान का तकवा, उसके दिलों का खुलूस पहुंचता है। और एक हदीस का महफूम भी है कि इंसान के अमाल का दारोमदार उसकी नीयत पे होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।